Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Namaskar and welcome to this Monday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic news of the day. And today, friends, we shall also be taking calls from you on any queries that you may have on economic, business and stock market news. But please do remember that we do not address company-specific queries. While you may call us on the numbers 2331-4444, 2371-7106 and 2371-7117. And yes, if you are calling us from outside Delhi, please do not forget to add 011 as a prefix to these numbers. Well, I am your hostess Lalima Aneja Dang, and with me is my co-anchor in Hindi, Vibhuti Mishra. नमस्कार, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है, जहां हम ताजा आर्थिक खबरें आप तक लाएंगे। आज सोमवार है और हम आपके सवाल भी सीधे कार्यक्रम में शामिल करेंगे। आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार से जुड़े किसी भी विषय पर आप प्रश्न पूछ सकते हैं। यहां बता दें कि कार्यक्रम में किसी कंपनी विशेष या स्टॉक के बारे में जानकारी नहीं दी जाती है। हमारे 3 टेलीफोन नंबर्स हैं 2331-4444, 2371-7106 और 2342-1050 पर फोन करके आप सवाल भी पूछ सकते हैं। दिल्ली से बाहर के श्रोता इन नंबरों से पहले 011 अवश्य डायल करें। सवालों के जवाब देने और चर्चा के लिए स्टूडियो में आमंत्रित हैं आर्थिक विश्लेषक यामिनी अग्रवाल। यामिनी जी नमस्कार, स्टूडियो में आपका बहुत स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद। और सबसे पहले हेडलाइंस के साथ हैं लालिमा अनेजाटे। Thank you, Vibhuti ji. Yes, the headlines first. Domestic benchmark indices snapped 2 days of losses to close marginally higher amid mixed global cues. Sensex ends above 57,650 mark while Nifty settles near 17,000 level and rupee appreciates 11 paise to close at 82 rupees and 37 paise against the US dollar. मिश्रित वैश्विक संकेतों के बीच घरेलू बेंचमार्क सूचकांक पिछले 2 सत्रों के नुकसान से मामूली लाभ के साथ बंद। सेंसेक्स 57,650 अंक के ऊपर और निफ्टी 17,000 स्तर के नजदीक बंद। रुपया आज डॉलर के मुकाबले 11 पैसे मजबूत होकर 82 रुपये 37 पैसे पर बंद हुआ। और बात करें सेंसेक्स की तो मिश्रित वैश्विक संकेतों के बीच घरेलू बेंचमार्क सूचकांक पिछले 2 सत्रों के नुकसान से मामूली लाभ के साथ बंद हुए, क्योंकि वैश्विक अधिकारियों ने बैंकिंग उथल-पुथल को रोकने के लिए कदम उठाए। अमेरिका और यूरोप में वित्तीय प्रणाली के स्वास्थ्य के बारे में चिंताओं को लेकर सत्र के दौरान बाजार अत्यधिक अस्थिर रहा। सेंसेक्स 127 अंक या 0.2% बढ़कर 57,654 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 41 अंक या 0.24% की तेजी के साथ 16,986 पर बंद हुआ। बीएसई के व्यापक बाजार में मिड कैप इंडेक्स में 0.4% और स्मॉल कैप इंडेक्स में 1.5% की गिरावट आई। Domestic benchmark indices recovered from losses of previous 2 sessions to close with marginal gains amid mixed global cues as global authorities took steps to contain the banking turmoil. The market remained highly volatile during the session over concerns about the health of the financial system in US and Europe. The Sensex surged 127 points or 0.22% to end at 57,654. Nifty also rose 41 points or 0.24% to settle at 16,986. In the broader market at the BSE, the mid-cap index shed 0.4% and the small-cap index fell 1.5%. In the Sensex index, which is a pack of 30 companies, shares of 15 firms rose, while rest 15 fell. Reliance gained 1.5%, followed by Sun Pharma, which was up by 1.2%, and Maruti added nearly 1%.
On the other hand, Power Grid and Tata Motors plunged 1.1% each, followed by Bajaj Finance slided 1%, while Mahindra & Mahindra and Axis Bank, which declined 0.9%. In sectoral indices at the BSE, 5 sectors posted gains, while 15 logged losses. Healthcare rose 0.7%, oil and gas was up by 0.2%, FMCG edged up 0.1%. Among the sectors in red were utilities with 2.5%, power 2.1%, and telecommunication and realty ending 1.2% lower. The overall market breadth was negative as shares of 2,771 companies fell, while those of 881 companies rose. A total of 136 shares remained unchanged. Well, right now we have Rajiv online. He's calling us all the way from Noida. जी राजीव जी सवाल पूछें. हाँ जी नमस्कार जी मैडम. हमने एप्लीकेशन भेजी, मतलब फॉर्म भेजा CSC के थ्रू पैन कार्ड को करेक्ट करवाने के लिए. तो उसमें ये आ गया वापस लिख के कि इसको दोबारा अपलोड करो, ये फाइल जो है रीडेबल नहीं है. तो ये मामला सुलझाने के लिए हम ऐसी जगह नहीं जा सकते जहाँ पर बाई हैंड ही इसको दे दे, क्योंकि इसके बिना तो लिंक ही नहीं होगा आधार से वो हमारा फॉर्म. जी, आपका जो इनकम टैक्स नंबर है वो आधार से डायरेक्टली लिंक हो सकता है. अगर आप अपने इनकम टैक्स अकाउंट पे जाएं और उसको जब लॉगिन करते हैं उसके बाद वो आधार लिंकेज के लिए पूछता है. तो जब आप लिंक करने की कोशिश करते हैं वो अपलोड के लिए भी रिक्वेस्ट करता है और OTP की भी रिक्वेस्ट करता है. उसके द्वारा आप उसको कंप्लीट कर सकते हैं. इसी बीच दिल्ली से हमारे एक श्रोता हैं अमित जी, सवाल पूछिए. मार्केट मंत्र टीम को नमस्कार. नमस्कार, सवाल पूछिए. नहीं मैडम को भी नमस्कार है. जी नमस्कार. मैडम मेरा प्रश्न ये है कि अभी मैं एक दिल्ली से बात कर रहा हूँ. अभी मैं एक पार्क में बैठा हूँ तो एक अंकल जी हमारे जो पड़ोस के हैं वो बता रहे हैं. हेलो. हाँ बोलिए. आधार और पेन से लिंक जो करने की समय सीमा है अप्रैल तक निर्धारित की गई है. अगर अप्रैल के बाद हम लिंक करवाते हैं तो 6,000 रुपए की पेनाल्टी है. ऐसा कुछ न्यूज नोटिफिकेशन वित्त मंत्रालय की ओर से आया हुआ है क्या मैम? थैंक यू. जी ऐसा तो कोई नोटिफिकेशन नहीं आया हुआ, पर आपको आधार के साथ अपना पैन लिंक कराना जरूरी है ताकि आपकी जो रिटर्न है वो असेस हो सके, और लिंकिंग मैंडेटरी है अब. चलिए, शायद ये अफवाह होगी, कोई बात नहीं. यामिनी जी ने क्लैरिफाई कर दिया. अभी NR प्रसाद जुड़े हैं हमारे साथ और वो हमें बेंगलुरु से कॉल कर रहे हैं. यस मिस्टर प्रसाद, प्लीज आस्क अ क्वेश्चन. हाय, गुड इवनिंग. दिस इज NR प्रसाद फ्रॉम बैंगलोर. या गुड इवनिंग सर. On one hand, FPI investment has gone up in India by 7,200 crore, but on the contrary, IMF says risks to financial stability is still higher. Where the Indian market stands on this? My second question is, all eyes are on US GDP estimates and of course on Indian debt. How this would impact Indian market? Well, when you talk about the FPIs, there has been a continuous drift or a change in the portfolios. Initially because the Federal Reserve Bank had been hiking rates, and as a result many of the FIIs shifted their portfolio to the US. But because given the strength of the economy and the growth rates that it has been promising overall, besides the reforms and the continuous impetus given by the fiscal policies and the tightening of the monetary policies, there has been a strong presence of strong indicators of macroeconomics in India, which does aid the FPIs to actually invest in India, because of which you do see that. As far as financial stability is concerned, there is a concern about the financial system in US as well as in the European markets, primarily because the interest rates by the central banks have been continuously rising, and which has caused an effect on the balance sheets of the bank. And you must have heard about the banks which went into bankruptcy lately. So that is one of the reasons why it is felt that can have a systematic effect on many other countries which are continuously raising their interest rates.
As far as US GDP is concerned and Indian economy is concerned, one needs to recognize that the Indian economy is very strong in terms of its domestic consumption. We are interlinked with the external markets, which does affect us in terms of our exports, imports, trade, as well as remittances and capital flows. But still, a large portion of the Indian economy's GDP comes from its own domestic consumption, which plays a more important role in its growth than the outside economies. Right. So we can say our population at this point is an asset because our consumption is so high that we have strong fundamentals. Our economy is a consumption-based economy. Our economy is a consumption-based economy. Also, what needs to be remembered is, despite COVID, the Asian economies across the world have a savings rate which is 33%, which has saved them through the COVID pandemic and continues with their own process of consumption in a slow and a gradual manner, which is sustaining them through the crisis as well as the recoveries, which have been very positive in case of India, where even pent-up demands have taken to high frequency indicators in India. Right. जी लालिमा जी, इस बीच जो है दिल्ली से एक अनिल जुड़ गए हैं। अनिल जी, सवाल पूछिए। मेरा ये सवाल है, सबसे पहले तो नमस्कार। SVB बैंक जो यूएसए का है, जो उनको ये कांड हो गया, तो हाउ कुड जो यूएस के रेगुलेटर्स है या बैंकिंग रेगुलेटर्स है, तो हाउ दे दिस मॉनिटरिंग? नंबर 1, क्या इंडिया में भी ऐसी कुछ प्रॉब्लम हो सकती है या हमारी मॉनिटरिंग इतनी सही है कि दिस थिंग इज नॉट पॉसिबल? जी देखिए, यूएस के अंदर जो सुपरवाइजरी रोल था उसका इतना स्पेसिफिक रोल नहीं रहा है, क्योंकि जब इंटरेस्ट रेट्स फेडरल रिजर्व बैंक ने कंटिन्यूअसली बढ़ाए, तब एससीबी के पास जो है लिक्विडिटी की इश्यूज आए, और लिक्विडिटी के इश्यूज की वजह से जब वो अपने बॉन्ड्स मार्केट में बेचने गए तो प्राइसेस गिर गई थी और उन्हें उतना फायदा नहीं मिला इन टर्म्स ऑफ द रिटर्न। यूजुअली ये लॉसेस नोशनल लॉसेस होते हैं अगर आप बॉन्ड्स को मैच्योरिटी तक होल्ड करते हैं, तो इसलिए अगर वो मैच्योरिटी तक होल्ड करते तो वो अपने जो लाइबिलिटीज हैं उनको पे ऑफ कर पाते, बट क्योंकि इमीडिएट लाइबिलिटीज आई और उन्होंने जो उनकी इंटरेस्ट रेट्स के गैप्स थे उन्हें ना ध्यान देते हुए पूरे एसेट के पोर्टफोलियो को ज्यादा से ज्यादा गवर्नमेंट बॉन्ड्स में या बॉन्ड्स में रखा हुआ था, जिसकी वजह से ये असर आया। यहाँ पे एनपीए का इशू नहीं था जो बॉन्ड्स के बैंकरप्सी को लेकर के हों। सुपरवाइजरी रोल्स ज्यादातर देखे जाते हैं कि एसेट जो आप दे रहे हैं उसके ऊपर आपने कितना कैपिटल टू रिस्क रखा है और आपने क्या मेजर्स अडॉप्ट किए हैं व्हाइल यू आर गिविंग अ लोन। I think we glorify everything Western and US so much that when their bank like SVB goes bust, it sends kind of chills. There's a ripple effect of fear and apprehension amongst the developing nations as well, like ours. It does, because primarily if a bank fails there, it does somewhere or the other raise alarms, especially because there has been a global financial crisis in 2007. Yes. The Lehman Brothers. The Lehman Brothers. And, and that percolated to all the other banks as a systematic. But a lot of people have not seen that as this particular bank failing as a systematic crisis. But they do warn that if the situation of monetary tightening continues, it can face, the system can face, systematic risks. All right, let's be, as they say, cautiously optimistic. Well, we have Rajendra Prasad online calling us from Delhi. जी राजेंद्र जी, सवाल पूछें। शायद मेरा सवाल अजीब लगे, फिर भी पक्का होने के लिए आधार को पैन से लिंक करने का नोटिफिकेशन आ रहा है, तो हम जब कई साल से रिटर्न फाइल करते हैं तो उस पे आधार इंडिकेट करते ही हैं, तो क्या वो लिंक्ड है? जी देखिए, वो जब आप रिटर्न अपनी फाइल करते हैं और तो वो आपकी रिटर्न को सबमिशन के टाइम पे आधार के ओटीपी से लिंक करता है। उससे आपको पता चल जाता है कि आपकी रिटर्न लिंक्ड है या नहीं है। स्पेसिफिकली आपके अकाउंट में भी वो दिखाता है कि जब लिंक हुआ होता है, तो अगर आप आपका अकाउंट देखेंगे तो उसमें भी आपको पता चल जाएगा। इसी बीच दिल्ली से एक और कॉलर हैं, अनिल आहूजा। जी अपना प्रश्न पूछिए अनिल जी। हेलो, गुड इवनिंग टीम। मेरा एक प्रश्न है कि मेरे पास एक पहले पैन कार्ड था जो उस टाइम मोबाइल लिंक नहीं होता था, मोबाइल से बहुत पुराना था,
तो वो कहीं मिसप्लेस हो गया, तो मैंने नया पैन ले लिया था। तो वो मोबाइल लिंक है, सब ठीक है, लेकिन पुराना पैन को मैं यूज भी नहीं करता और मैंने वहां इन्फॉर्म भी कर दिया था कि ये मेरे पुराने को स्क्रैप कर दिया जाए। तो उसके बाद मेरे को कोई इंटीमेशन नहीं आई, पर मुझे कभी कभी मेल आ जाती है उस पैन के साथ उसकी कि भाई ये आपने लिंक कराओ। तो मैं तो उसे यूज ही नहीं कर रहा, मैंने तो एप्लीकेशन भी दी हुई है। तो इसका क्या इफेक्ट है उस पर बताइए प्लीज। थैंक यू जी देखिए, यूजुअली आपकी असेसमेंट्स प्रीवियसली आपके प्रीवियस पैन कार्ड के साथ ही लिंक्ड होंगी, और अगर आपने उसे कैंसिल नहीं कराया या लिंक नहीं कराया अपने पैन कार्ड से, तो आपकी कभी भी अगर असेसमेंट आती है तो आपको दिक्कत आएगी। तो इसलिए ये जरूरी है कि आप अपने प्रीवियस पैन कार्ड को और इस पैन कार्ड को लिंक कराएं, ताकि जो आपकी प्रीवियस असेसमेंट्स हैं वो इस प्रेजेंट पैन कार्ड के साथ लिंक हो सकें। All right. We are now joined by Rakesh calling us from Delhi. Well, Delhi seems to be dominating today as callers from Delhi. जी राकेश जी सवाल पूछे। जी मैडम नमस्कार। जी नमस्कार। मैं ये पूछना चाहता हूँ प्रधानमंत्री। जी आपकी आवाज क्लियर नहीं है। हेलो, आपकी आवाज क्रैक हो रही थी, फिर से पूछेंगे सवाल अपना? नो। आ रही है? हाँ अब पूछिए। जी पूछिए, ट्राई करते हैं एक बार फिर से। प्रधानमंत्री के द्वारा जो अकाउंट्स खोले गए थे जन अकाउंट्स के बारे में, उनका तो जीरो बैलेंस है और वो पैन भी यूज नहीं करते, क्या उनका पैन कैसे, उनको तो कोई ऐसी पेनल्टी तो नौबत नहीं आएगी? जी नहीं, पीएम जनधन योजना के द्वारा जो बैंक अकाउंट्स खोले गए हैं उसके अंदर ऐसी कोई पेनल्टी नहीं है, और पैन को लिंक करने के लिए आपके अकाउंट्स के साथ इसलिए किया जाता है ताकि आपको जब टैक्सेस वगैरह पे करने हो तो आप वो पे कर सकें। लेकिन आपके केवाईसी रिक्वायरमेंट्स के अंदर वो आपसे जरूर मांगेंगे कि आप अपना पैन कार्ड दें अगर आपकी ट्रांजैक्शंस एक पर्टिकुलर लेवल से ऊपर होती हैं या कुछ स्पेसिफिक होती हैं। इसी बीच मुंबई से रत्नाकर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रत्नाकर जी अपना प्रश्न पूछिए। हाँ हेलो, गुड इवनिंग सर। मेरे दो सवाल है। पहला सवाल है कि दिन ब दिन एवरी डे मार्केट डाउन जा रही है, तो ये मार्च एंड तक ऐसा ही सिलसिला चालू रहेगा क्या? और दूसरा सवाल है कि इनकम टैक्स में जो लास्ट 2 साल से सभी टैक्स कैलकुलेट करके आता था और तभी AIS हम ध्यान में नहीं लेते थे, अभी AIS में जो कुछ हमारा इनकम टैक्सेस आते हैं वो ध्यान में रख के इनकम टैक्स कैलकुलेट होके ही इनकम टैक्स ITR 1 में आ जाएगा क्या? लास्ट टाइम तो ऐसा ही आया था, टैक्स वगैरह सब कैलकुलेट होके आया था। थैंक यू। जी देखिए, स्टॉक मार्केट्स ओवरऑल वॉलेटाइल हैं प्राइमरीली क्योंकि काफी आशंका है बैंकिंग सिस्टम को लेकर के US के और यूरोपियन रीजन के। और खास तौर पे ये भी देखा जाए तो इन्फ्लेशन एक अभी भी बड़ा चैलेंज बना हुआ है। स्टॉक मार्केट्स में FNO की जो एक्सपायरी है वो 29 मार्च तक है, तो माना जा रहा है वॉलेटिलिटी कंटिन्यूड रहेगी। ओवरऑल मार्केट्स में एक अगर टेक्निकल इंडिकेटर्स भी देखें तो एक बियरिश ट्रेंड दिखाता है, जिसके तहत ये जो वीक है वो काफी हद तक बियरिश रहेगा। अगर आप देखें तो इस वीक में छुट्टी भी पड़ रही है रामनवमी की, जिसका भी असर आपको स्टॉक मार्केट्स की ओवरऑल वॉलेटिलिटी में दिखेगी, और माना जा रहा है कि रेंज बाउंड ट्रेडिंग रहेगी इस वीक के दौरान। All right, now we have LP Kothari online calling us from Kolkata. Yes, Kothari जी सवाल पूछे। हाँ, गुड इवनिंग मंत्रा, यामिनी जी को भी प्रणाम। जी नमस्ते मैडम, मैं ये पूछ रहा था कि जो ये फाइनेंस बिल आज पास हुआ है फाइनली, तो इसमें वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में जो इंडेक्सेशन को वो लोग एबोलिश कर दिए हैं, तो ये इंडेक्सेशन ये पूरा हट गया है ना, क्या है? इसको थोड़ा सा अगर समझा सकें मेहरबानी। जी देखिए, इंडेक्सेशन एक प्रोसेस होता है जिसके तहत आप जब अपनी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है, खासतौर पे लॉन्ग टर्म एसेट्स की, उनको जो है आज की कीमत में बना सकते हैं, आज के प्राइस लेवल के साथ मल्टीप्लाई करके।
कोशिश यही की जाती है कि आपका जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है उसे आज की तारीख तक लाया जा सके, तो ताकि आपका जो कैपिटल गेन है वो कम है। जैसे ही इंडेक्सेशन अबॉलिश होता है या कोई भी इंडेक्सेशन को हटाया जाता है, आपको उस प्रक्रिया का जिसके तहत कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आज की तारीख तक की जाती है उसका फायदा नहीं मिलता और कैपिटल गेन्स बढ़ जाते हैं। इसी बीच फरीदाबाद से हैं प्रेम कुमार। प्रेम कुमार जी, अपना सवाल पूछिए। नमस्कार जी। नमस्कार मैडम। नमस्कार मैडम, आज जितना प्रोग्राम सुन रहे हैं उसमें सब पैन के पूरी टेंशन ले रहे हैं जी। मैडम ये बताइए, जिसका जो टैक्स नहीं भरता क्या उसको भी टेंशन लेने की जरूरत है अगर उसका लिंक नहीं है तो? और अभी एक सवाल सुना था हमने कि जो जीरो बैलेंस का अकाउंट है उसको भी जरूरी है लिंक करना अगर उनका पैन लिया है नहीं उन्होंने। जी देखिए, आपकी टैक्सेबल इनकम है तो आपको पैन की जरूरत है, और अगर आपकी इनकम टैक्सेबल नहीं है तब भी आप पैन ले सकते हैं और अपनी एग्जेम्प्टेड इनकम की रिटर्न भर सकते हैं। पर जिनकी भी टैक्सेबल इनकम आती है और एग्जेम्पशन लिमिट से ऊपर है इनकम, उन्हें पैन लेना जरूरी है। ये भी जरूरी है कि जिन जिन के टीडीएस कटते हैं, अगर आपको टैक्स रिफंड चाहिए और आपकी टैक्सेबल इनकम नहीं बैठ रही है तब भी आपको जो है पैन लेना जरूरी है। और अब ये मैंडेटरी हो गया है कि पैन को आधार के साथ लिंक करें। पेनल्टी नहीं है पर लिंक करना मैंडेटरी हो गया है, ताकि आप आराम से अपनी आईटीआर भर सकें और बाकी की सुविधाओं का भी फायदा उठा सकें। इसी बीच एशियन मार्केट का हाल जानते हैं। वैश्विक बैंकिंग क्षेत्र की सेहत को लेकर जारी चिंता के बीच एशियाई बाजारों में आज मिला-जुला रुख रहा। हांगकांग का हैंगसेंग 1.8% की गिरावट के साथ बंद हुआ। चीन के शंघाई कंपोजिट में 0.4% और दक्षिण कोरिया के कॉस्पी में 0.2% की गिरावट देखी गई। हालांकि जापान का निक्केई 0.3% और सिंगापुर का स्ट्रेट टाइम्स 0.8% की तेजी में रहे। यूरोपीय बाजार दिन के कारोबार में मजबूती के साथ कारोबार कर रहे थे। यह इसलिए क्योंकि वैश्विक अधिकारियों ने बैंकिंग उथल-पुथल को रोकने के लिए कदम उठाए थे। इससे कुछ भ्रम की आशंकाएं खत्म हो गई। अंतिम समाचार मिलने तक जर्मनी का डेक्स 1.3%, फ्रांस का कैक 1.1% और लंदन का फुटसी 0.9% की बढ़त के साथ कारोबार कर रहे थे। और अच्छी बात यह है कि आज रुपये में मजबूती है और 11 पैसे की मजबूती है। तो विदेशी मुद्रा बाजार में आज रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले करीब 11 पैसे मजबूत हुआ। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपये की कीमत आज 82 रुपये 37 पैसे पर बंद हुई। विश्व की 6 प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की मजबूती दर्शाने वाला डॉलर इंडेक्स अंतर्दिवसीय कारोबार में 103.11 पर सपाट रूप से कारोबार कर रहा था। If we had time, we would have asked you, is rupee going to be the next global currency, as we sense? But before that, we are now joined by Sachin calling us from Mumbai. Yes, Sachin ji, सवाल पूछे। हेलो जी, सवाल पूछे सचिन जी। हाँ मैडम, मेरा रिकरिंग डिपॉजिट से रिलेटेड सवाल है, इसमें टैक्सेशन कैसे कैलकुलेट होता है? जी देखिए, आपका जो भी डिपॉजिट होता है उसके ऊपर एक टीडीएस कटता है और आपका जो भी इंटरेस्ट बनता है वो इंटरेस्ट आपकी 26AS के अंदर आ जाता है, जिसके ऊपर आप एक पर्टिकुलर अमाउंट टीडीएस देते हैं। आप उस इंटरेस्ट को लेकर के अपने इनकम्स में जब ऐड करेंगे तो उसके बेसिस पे जो आपका टैक्स स्लैब पे रेट बैठेगा आप उसके ऊपर इनकम टैक्स पे करेंगे। जो टीडीएस है वो कटता जाएगा और वो आपको 26AS में दिखाएगा। All right. I was just going to ask that question, Yamini. With many countries now agreeing to trade in rupee, of course, now we just read the story that rupee is being strengthened against the US dollar. Is it going to be a threat to the US dollar? Are we being too optimistic when we say that? Well, rupee has been able to create its acceptability among 18 nations, and there is a wider acceptability to the rupee and its trade, which is a very positive thing for us to celebrate. When we talk about dollar, because dollar has always had a hegemony in international trade, especially after 1974-75,
and that adds on to the benefit of dollar. So to reach to that level, it will take time, and a dollar also has the benefit of the backing of US, so which is a developed country versus ours as an emerging economy. So though there is trust and there is acceptability, and there is more acceptability in India's growth, but we have to take the challenge one by one and be very optimistic and simultaneously tread the path very carefully. Yeah, when the rupee logo was created, we were very happy, and now we've reached this far that we have, as you said, 18 countries dealing in rupee as a currency. Let's be a little optimistic on that. Moving on, well, Parliament has completed budgetary exercise for the year 2023-24 with Rajya Sabha returning the Finance Bill 2023 amid din without discussion. Lok Sabha had cleared the Finance Bill last week. The Upper House also returned the Appropriation Bills 2023 and Jammu and Kashmir Appropriation Bills 2023 with voice vote without discussion. Moving on, the Centre today said the Mahila Samman Savings Certificate Scheme has been announced in the budget with a deposit facility up to 2 lakh rupees in the name of women or girls for a tenure of 2 years at a fixed interest of 7.5%. In a written reply in Lok Sabha, the Union Minister of State for Finance Pankaj Chaudhary said the scheme will start in financial year 2023-24. Mr. Chaudhary further said there is not any proposal pending to increase the limit of amount to 10 lakh rupees in the Mahila Samman Savings Certificate Scheme to encourage the women to save their money. Before we talk about this, let's have Keshav online calling us from Delhi. जी केशव जी सवाल पूछें. नमस्कार जी. जी नमस्कार जी. जैसा कि मेरा TDS नहीं करता, मैं फॉर्म 15G फॉर्म भरता हूँ, ये मुझे कब तक भर देना चाहिए? और दूसरा, मुझे टैक्स मेरे को टैक्स तो देना नहीं पड़ता, तो इसमें मेरा पैन नंबर अभी लिंक नहीं हो पाया, तो इसमें मुझे कोई चार्ज देना पड़ेगा या लिंक कराने के समय पर मुझे पेनल्टी लगेगी क्या? जी देखिए, जब आप FD वगैरह बनवाते हैं तभी आप अपना 15G और H फॉर्म भर दें, तब बेहतर रहता है, या जब आप अपना बैंक अकाउंट खोलते हैं तब भी भर सकते हैं. और अगर आपका पैन कार्ड आधार से लिंक है या नहीं, वो आप एक SMS के द्वारा भी जान सकते हैं, जो आप अगर SMS भेजें 56161 पे या 567678 पे, तब भी आपको मिल सकता है. इसके साथ साथ E-पोर्टल है जहाँ पे, वहाँ पे आप अपना पैन और बर्थ डेट करेंगे तो आपको जो है सबमिट का बटन दिखाएगा, और उस पर भी आप चेक कर सकते हैं कि आपका लिंक्ड है या नहीं है. पेनल्टी कोई नहीं है जैसे मैंने पहले कहा, पर ये मैंडेटरी है क्योंकि जो है गवर्नमेंट चाहती है कि आप अपना आधार कार्ड अपने पैन के साथ लिंक करें, और KYC नॉर्म्स के हिसाब से भी आपके जो बैंक अकाउंट्स हैं उसमें भी आपका पैन और आधार लिंक्ड होता है. Well, Yamini, coming back to a previous story, women's empowerment has been very close to the Honorable Prime Minister's heart. We now have a finance minister, the first lady finance minister. She was earlier the defense minister. Now the Mahila Samman savings, 2 lakh rupees, 2 years at 7.5%. They will not increase to 10 lakh rupees, but do you think it will help a lot of women, empower them, especially the self-help group, those involved in, SHGs and all? I think it's a very important scheme for financial inclusion for women, primarily because women save small amounts of bits from their household or from other savings, and they do not know where to go. And this saving scheme gives them a venue of about 2 lakhs to be, saved with a higher interest rate, which also, somewhere or the other supports them in ensuring that people will get a higher interest rate. So more and more people would be inclined to have, women have an FD in that. Right. Well, moving on, oil prices today rose as concerns over turmoil in the banking sector eased, while comments by Russian President Vladimir Putin over the weekend ratcheted up geopolitical tensions in Europe. In intraday trade, Brent crude was trading at around $75.82 per barrel, while WTI crude price was at $70 per barrel when reports last came in. Well, on that note, it's time for us
to thank Dr. Yamini for coming to the studio. Thank you very much for your views. And before we close, as a reminder of the headlines, friends, domestic benchmark indices snapped 2 days of losses to close marginally higher amid mixed global cues. Sensex ends above 57,650 mark, while Nifty settles near 17,000 level. And rupee appreciates 11 paise to close at 82 rupees and 37 paise against the US dollar. That's all we have for you in this edition of Market Mantra. This is myself, Lalema Aneja Dang, and my co-anchor Vibhuti Mishra signing off. Namaskar. Namaskar. Market Mantra. Market Mantra.